So, what is an impulse, or how do you develop creating an impulse within you as an actor? Impulse is, according to my limited experience, is a result of intuition. इंट्यूटिवली आप कहीं बैठे हैं और बैठे बैठे आपको एक दिमाग में कोई बात आती है या कोई एक फीलिंग आती है, और उस फीलिंग को आप अगर फॉलो करते हैं तो कभी ना कभी कई बार लगता है कि हाँ यार, मैंने फॉलो किया तो मुझे जिसको मैंने जो कहना था वो उस चीज़ तक उसको बहुत असरदार लगा, उसको मेरी बात बहुत अच्छी लगी। ये थोड़ा सा वेग है जो मैं जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इम्पल्स आपको आपके सबकॉन्शियस के अंदर से आता है आपका, और हम लोग अपने सबकॉन्शियस को इतना तवज्जो नहीं देते। सबकॉन्शियस, जहाँ तक मेरा मानना है, सबकॉन्शियस एक एक्सट्रीम पावर के थ्रू हमारे सबके पास आती है, और उस एक्सट्रीम पावर का एक ज़रिया होता है आपके सबकॉन्शियस और आपके इंट्यूशन के ज़रिए आप तक कुछ पहुंचाने का। बट क्योंकि हम अपने अंदर की आवाज़ को इतना तवज्जो नहीं देते हैं और हम अपने अंदर की आवाज़ की वॉल्यूम को बहुत कम रखते हैं, तो इसीलिए हम अपने इम्पल्सेस और इंट्यूशंस को भी सीरियसली नहीं लेते। बट जहाँ तक एक्टिंग की बात है, आई थिंक इंट्यूशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन एन एक्टर्स आर्मरी कहा जाए, बिकॉज एक लाइन कहते कहते सडनली आपको उस लाइन को कहने के लिए आपका उस टाइम पे अगर आपके दिमाग में आता है कि मैं ये इस लाइन को मैं इस तरीके से बोल दूँ, 9 times out of 10 times you will always be right, because an impulse or an intuition only comes to you at the right time. Whether you follow it, if you follow it, you would probably get the benefit of it. If you don't follow it, automatically you would realize that I am not following my instincts, and that is why I am not being able to be connected with what I am doing or what I am saying. You would be fully connected if you are following your instincts, because these instincts are coming to you from a larger force, and those instincts have to be followed. Sometimes they may not work for you, but that doesn't mean you become cynical. That उसका मतलब ये नहीं कि अच्छा पिछली बार मैंने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया था मगर बात बनी नहीं थी तो अब से मैं कभी नहीं करूँगा। ये एक रिजिड तरीका है, और जहाँ तक एक्टर्स से जुड़ी हुई बात है, एन एक्टर शुड नेवर बी रिजिड. He or she should be one of the most flexible personalities, so that at any given point of time you are able to accept any kind of morality. There would be many times when you probably might need to play a person whom you hate. You would have hated yourself. I mean, a character whom you would hate personally. But if you have to play that as an actor, it's a big challenge, and your morality then automatically should be kept aside. And that is exactly an example of flexibility. वो flexibility of opinion एक ये नहीं कि अच्छा एक एक्टर बुत बन के बैठ जाए और उसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको अपने काम के लिए, उसके लिए अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तब वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। वो आपको आपके काम के बाहर अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट it backfires on that. I'm not here to make any judgments on anybody. Neither am I any a big personality you can talk so much about it. It's just my humble opinion. Starting with the impulse. Extremely important to follow your impulses and instincts and intuitions when you're doing any work as an actor, because that will help you in coming up with spontaneous reactions, and it would add a lot of spontaneity in your work, which is one of the most important ingredients in any actor's work. Spontaneity जो है
वो पहले टेक में, दूसरी टेक में आप किसी तरीके से उस चीज़ को बरकरार रख सकेंगे। बट जहाँ आप 10वें 12वें टेक में पहुँच जाते हैं, नॉट ओनली फॉर एनी फॉल्ट ऑफ योर्स, इट कुड बी ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, इट कुड बी ड्यू टू अ मिस्टेक मेड बाय अ फेलो एक्टर, so many things. Where would that spontaneity come from? The spontaneity would emerge from the impulses that you get, and those impulses are extremely necessary to preserve and to seriously consider. उसको ये मत सोचो कि हाँ मेरा इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त है तो my mind is playing games with me, I would not listen to my mind. I think first of all the biggest mistake is that you are identifying it as your mind. It's not your mind. It's actually beyond your mind that these instincts are coming from. If it was your mind, then probably they wouldn't have come to you. The instincts are coming from beyond your mind. So अगर आप उस चीज़ को, उसी बेसिक चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि ये इंस्टिंक्ट जो है ये मेरे दिमाग के जरिए नहीं आ रही है, ये किसी और जरिए आ रहे हैं मेरे पास, तो ऑटोमेटिकली आप उसको तवज्जो और देना शुरू कर देंगे. आई थिंक एवरी डिफरेंट एक्टर्स हैव डिफरेंट मेथड्स टू इट. कोई वो इट्स अ ट्रायल एंड एरर. जो आप जितना काम करते रहेंगे आप एज एन एक्टर, वो उसी में से आपका एक तरीका निकल के आएगा. कुछ तरीके आपको सूट करेंगे, कुछ तरीके आपको सूट नहीं करेंगे, बट वो इज आई थिंक अ प्रोडक्ट और अ रिजल्ट of many trial and errors which every actor finds their own way at. There isn't a beaten way or a regular format of saying how to create an impulse. But if I have to attempt finding a reason which I think would be blasphemous, we would have to go back to why. क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? तो उस वाई पे जब चले जाएंगे तो उसी वाई में से फिर से एक इम्पल्स निकल आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है. बट फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि हर एक्टर अपने सालों के सालों, सैकड़ों सालों का या जितने भी सालों का काम है, उसमें से वो एक अपना खुद एक तरीका ढूंढता है या ढूंढती है, जो वो तरीका जब उनके लिए रिजल्ट्स लाना शुरू करता है तो वो तरीके को फिर वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व करना शुरू करते हैं, बिकॉज वो तरीका उनके रिजल्ट्स ला रहा है, उनके काम में वो रिजल्ट ला रहा है, उनके काम में वो तरीका मदद कर रहा है, तो वो फिर वो तरीक़े को अपना के उसको प्रिजर्व करते हैं. और उसी को फिर वो एक अपने, अगर हम अपने शरीर को एक घर मान लें तो उस घर के अंदर एक कबर्ड है जो हम उसमें डाल देते हैं, और जैसे एक सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट होता है उसमें बंद कर देते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम इस्तेमाल करें, कोई चोरी ना कर ले उसकी. राइट.